एक नन्ही सी प्यारी सी लड़की थी जिसका नाम था लिटिल रेड राइडिंग हुड। वह हमेशा लाल रेशमी कपड़े की सुंदर सी टोपी पहने रहती थी। यह टोपी उसे उसकी दादी ने दी थी। दादी जंगल के पास एक साधारण कुटिया में रहती थी। There was a little girl, cute girl named Little Red Riding Hood. She was always wearing a beautiful red silk cap. This hat was given to her by her grandmother. The grandmother lived in a small hut near the forest. एक बार दादी बीमार हो गई। उसकी माँ ने कहा, बेटी तुम अपनी दादी के पास जाओ, उन्हें यह केक और किंतु एक बात का ध्यान रखना, रास्ते में अजनबी मिले तो उससे बात मत करना। नन्ही बालिका केक और दवा लेकर दादी से मिलने के once grandmother became ill, his mother said, daughter, you go to your grandmother, give them this cake and medicines. Take care of anything. Don't talk with anyone. If you find a stranger on the way, cake and medicine to her grandmother. Walk to meet. जंगल में एक धूर्त भेड़िया रहता था। जब उस भेड़िए ने नन्ही बालिका को देखा तो वह सोचने लगा, वह कितनी कोमल प्यारी बच्ची है। वह उसके पास गया और बड़ी मीठी वाणी में बोला, प्यारी बच्ची, तुम यह सब सामान लेकर कहाँ जा रही हो? जब भेड़िए को पता चला कि वह अपनी बूढ़ी दादी के पास जा रही है, तो उसने मन में एक योजना आई। उसने बालिका रेड राइडिंग हुड से कहा, देखो यहाँ कितने सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, पक्षी कितना मधुर गीत। दादी माँ के पास जाने की इतनी जल्दी क्या है? कुछ देर के लिए यहाँ रुक जाओ, घूमो फिरो और मजा करो। A clever wolf lived in a forest. When that wolf saw the young girl, he started thinking how tender sweet a girl he wanted to her, and he said in a sweet voice, sweet baby, where are you going with all this stuff? When the wolf came to know that she was going to her old grandmother, a plan came to her mind. He said to the girl, Red Riding Hood, look how a beautiful colorful flowers bloom her. What a beautiful song the birds are singing. What is the hurry to go to the grandmother? Stop here for a while. Turn around and have a fun. भोली बच्ची धूर्त भेड़िए की बातों में आ गई। वह अपनी प्यारी दादी माँ के लिए सुंदर सुंदर फूल चुनने लगी। उसने सोचा कि सुंदर फूलों का गुलदस्ता देखकर बीमार दादी खुश हो। The little girl came to top of the rascal wolf. She started choosing the beautiful flowers for her beloved grandmother. She thought that the sick grandmother would be happy after seeing the beautiful flowers. इसी बीच भेड़िया तेजी से दौड़ता उसकी दादी माँ के घर पहुंचा। उसने कुटिया का दरवाजा खटखटाया। दादी माँ ने पूछा, कौन है? भेड़िया ने जवाब दिया, मैं रेड राइडिंग हुड। दादी माँ आपके लिए केक और दवाइयाँ। In the meantime, the wolf asked the wolf, rushing to his grandmother's house. Hey, now the wolf replied, I am the red little hood. Grandmother, have brought cakes and medicine for you. बीमार के कारण दादी माँ शरीर बहुत कमजोर हो, इसलिए वह बिस्तर से उठ सकी। उन्होंने लेटे लेटे ही कहा, मेरी बच्ची होकर अंदर आ जाओ। भेड़िया उछला और चिड़िया खोलकर अंदर घुस आया। अंदर आते ही वह बूढ़ी दादी पर झपटा और उन्हें घायल कर दिया। बेचारी दादी माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। ग्रैंडमदर body had become very weak due to illness, so she could not get up from the bed. She said while lying down, my girl baby, you open the chimney and come in. The pawns won the grandmother and injured them.
Poor grandmother fainted. The wolf leaped and sneaked inside, squeaking smooth. She fell as soon as of the other arrived. तभी भेड़िया ने किसी के आने की आहट सुनी। उसने झटपट पास ही पड़े दादी माँ के कपड़े पहने और बिस्तर पर लेट गया। The wolf heard the call of someone coming. He quickly dressed grandmother's cloth lying nearby, lay on the bed. जब राइडिंग हुड घर के पास पहुंची और उसने दरवाजा खोला देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। वह तुरंत दादी माँ के बिस्तर के पास पहुंची। भेड़िया ने आवाज बदल कर कहा, बेटी तुम आ गई, इधर मेरे पास आकर बैठो। When he riding hood approached the house and saw the door open, she was surprised. She immediately reached near the grandmother bed. The wolf shouted, daughter, you have come, sit near me. जैसे ही वह पलंग के निकट पहुंची, भेड़िया फुर्ती से उठ बैठा। वह फुर्ती गुर्राते हुए राइडिंग हुड पर झपटा। उसी समय एक शिकारी वहां से गुजर रहा। उसे घर के अंदर से भेड़िए की गुर्राने की आवाज सुनाई दी। वह भेड़िए को देखकर उसने तुरंत निशाना साधा और उस दुष्ट भेड़िए को वहीं ढेर कर दिया। As she approached the bed, the wolf rose up. He turned and rode, and then pounced on the riding hood. At the same time, a hunter was passing by there. He heard the wolf growling from inside the house. Seeing the wolf, there he immediately targeted and played the evil wolf there. Then the hunter and the riding hood lifted the grandmother and lie on the bed. फिर शिकारी और राइडिंग हुड ने दादी को उठाकर पलंग पर लिटाया। उसने मुंह पर पानी छींटे डाले। दादी को होश में आ गया। अपनी प्यारी पोती को सामने देखकर दादी का मन प्रसन्न हो उठा। Then the hunter and riding hood lifted the grandmother and lie sprinkle water on their mouth. Grandmother regained consciousness. Grandmother was happy to see her beloved grandmother infant. राइडिंग हुड ने दादी को दवा खिलाई, फिर माखा बनाया, केक खिलाया। दादी के पास रहकर उनकी खूब टहल की। जब वो दादी पूरी तरह से ठीक हो गई, तभी वह अपने घर वापस लौटी। राइडिंग हुड fed grandma the medicines, then fed the mother's cake. Stay close to her grandmother. When the grandmother was fully recovered, she returned to her home. Now we read meanings now. दुष्ट, अजनबी, जिसे जानते ना हो, वाणी आवाज, मधुर मीठा, कमजोर दुर्बल, बेहोश, जिसे होश ना हो, कुटिया झोपड़ी, धूर्त धोखा देने वाला, योजना तरकीब, जवाब उत्तर, घायल जख्मी। नाउ वी रीड क्वेश्चन आंसर्स में। नन्ही लड़की का नाम क्या था? लिटिल रेड। वह किस रंग की टोपी पहनी थी? लाल रेशमी। वह टोपी किसने दी थी? कौन बीमार हो गई? दादी। जंगल में कौन रहता था? भेड़िया। वह अपना दादी के लिए क्या सुंदर सुंदर फूल। भेड़िया किसके घर जा पहुंचा? दादी के। उस समय वहां से कौन गुजर रहा था? राइडिंग हुड ने दादी को क्या खिलाया? भेड़िया किस पर झपटा कर घायल किया? दादी। Now we completed our lesson, ma. Thank you.